हेलो माहिन, अस्सलाम वालेकुम, संगई खैराम. हेलो शहजाद, बिल्कुल ठीक ठाक. आई एम गुड, थैंक यू. आपका क्या हाल है? Alhamdulillah, thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Obviously, Pleasure. first up, ladies and gentlemen, we will be talking about the ICC Women's T20 World Cup, where in the World Cup today, it was a double header. It was a fantastic games to watch. May it be Scotland, may it be West Indies, or may it be India or Sri Lanka. Both the teams winning by 80 and 82 runs respectively. To speak about it further, we're very lucky that we've been joined by the maestro himself, His Excellency, the confidant, ladies and gentlemen, Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you? बताइए. boss? Bas, all good, all good. Looking really dapper today. Well, working hard for last 3 months. Alhamdulillah. Running on the injured knees, you know, but it's paying off well. तो मैं waistcoat में fit होना चाह रहा था, तो finally I managed to do that. Mashallah, congratulations on doing I have a witness with me, it. Ji. Mahin. Ji, Mahin. जी Do सही you कह bear रहे हैं. witness? I do. Okay, that's Absolutely. great. That's क्या witness है? भाई to your hard work. कितने चक्कर लगाता हूँ यंगस्टर को बता दो. 15-20. 15-20 क्रिकेट ग्राउंड के अभी भी जी. और कह रहे हैं मोटरसाइकिल पे. पैदल. इन नीज के साथ हो. Running, working hard. आजकल. माशाल्लाह. अब मैं वाल साहब से मिला था आसफिया से, तो कह रहे थे यार वर्किंग हार्ड. मैंने कहा जी करना पड़ता है इंजर्ड नीज के साथ. Gee, what's on the table? Exactly. So, What's sir, the menu? first up, I think what we're going to do is we'll talk about India. Obviously, Okay. coming across Sri Lanka, India thrashing them badly, making sure that they're going to get a comprehensive victory, won by 82 runs as well. Okay. सबसे पहले जरा उनकी मैच समरी दिखाता हूँ. You know, जी. two of their top batters actually came up and scored half centuries as well, which was wonderful to see. Kaur 52 not out on 27 deliveries. Smriti 50 of 38. Verma 43 of 40. And Jemima 16 of 10. Where on the other hand, Sri Lanka bowling couldn't really do one. Kanchana 1 of 29 and Chamari 1 of 34. श्रीलंका की तरफ जाते हैं तो अरुंधति की बात हमने उस दिन भी की थी लास्ट टाइम शोएब भाई आपसे. 3 for 19, Asha 3 for 19 and Renuka 2 for 16. Sri Lanka 1 of 15 in 4 overs. Dilhari with 21. Nothing notable in Sri Lanka's batting. Wrapped them up in 90 and sent back to the changing room as well. India winning by 82 runs. Ji Shoaib bhai, how do you see India today? Cruising through. टोटल बहुत छोटा था. 90 रन का टोटल था. I mean, when you have somebody like Shefali Verma जी. or getting about a 43 on a 40, तो obviously उसकी स्मृति है. But they bowled well. I mean, अगर देखें रेड्डी ने आउट किए, शशवाना ने आउट किए, 3 आउट किए. But the thing is, I think India looked apart, you know, when it comes to matching with Sri Lanka. But 90s के ऊपर safe तो नहीं होता ना. So I think they did well, and I think they cruised through. And hats off to Indian जो women's शोएब cricket. एक अच्छी चीज आज नजर आई हुई है कि इंडिया ने आज 172 रन बनाए. अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी टीम ने पार 150 नहीं बनाए थे. बट फॉर इंडिया टू काइंड ऑफ कम अप एंड यू नो मेक श्योर दैट वो अपने स्ट्राइक रेट को इस तरह से मेंटेन करके T20 लगे. 172 रन बनाए, श्रीलंका को 90 में पैक 90 किया. out, दैट्स इट, गॉन. And their captain Harmanpreet Kaur playing with a strike rate of 192. Exactly, the skipper. No. The skipper. No. I think it's Simriti. Simriti. Exactly. So I think it's phenomenal to see. Let's take a look at the Let's take points a look. table if you allow us as well. क्योंकि ये हमारे ग्रुप से है. पाकिस्तान आज तीसरे नंबर पे चला गया बगैर खेले. No worry, they'll make a comeback. So Australia with 4 points, followed by India with 4 points thanks to their game today. Then Pakistan with 2 points, New Zealand with 2 points, Sri Lanka unfortunately at the bottom of the table with 0 points. And the top two teams will progress into the semi-finals. So far it looks as if it will be Australia and India. So अगर Australia ऑस्ट्रेलिया and Pakistan. हाँ, Australia. पाकिस्तान के 2 मैच हुए हैं ना. 2 मैच हुए अभी होने. अभी होने. हमने तो क्या 4 कर लेना. ऑस्ट्रेलिया अपने सारे नेट जीते. रन रेट हमारा बेहतर हो जाएगा तीसरे मैच में. हाँ. द रीजन व्हाई 0.56 है हमारा और उनका 0.58 है. तो अगर इफ यू प्ले वेल, मैनेज टू प्ले वेल, इफ यू गेट अबाउट 120 125 in terms of the run rate, I think the Pakistan will qualify. I want Pakistan to qualify. That's it, simple, period. जी, अगर ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस जीत जाए और न्यूजीलैंड अब हार जाए तो पाकिस्तान विल स्टैंड अ चांस. ये तो हमारा क्या रिचुअल नहीं है हमारा क्या कि वो ये हार जाए, वो ये कर दे, हम पहुंच जाएंगे. क्या हमारे 5-10 साल से ये नहीं हो रहा? 5-10 साल से सर बहुत पुराना यही चल रहा है. नहीं, यही हो रहा है. 2014 से यही हो रहा है. I think that's wonderful. लेकिन स्मृति की तरफ चलते हैं जहाँ पे स्किपर की इनिंग्स हमें. With a beautiful 52 not out.
and a strike rate of 192, like I mentioned Wow, before. there she is. Yeah. There she is on our screen. And इससे पहले थोड़ी सी उनको एक there was a chance कि वो शायद injured हो, but no, luckily she was able to play today. So great knock by her. And she's injured. Yes, she's not. She's not. I mean, she has a niggle. She did. Yes. And she has niggle and she gets around about Yes. 52 and 27. Yes. Yes. Yeah. Well, Wow. strike rate of That is 190. amazing. That is amazing. I mean, she's something else, man. Core is. actually I mean, make like, sure that she's going to play from the core of her heart. I had to say this, Well, they're but it's good on merit. fighters. They're good fighters. And then good to see the crowd is coming in and to back India up. I mean, wherever India plays, the crowd comes to cheer them They up. do. I mean, that is the healthiest thing to, for ICC and for the broadcaster and everybody. It's important that crowds come out and support their teams, and it was heartening to see the crowds come out and support India today. Though they always come out. अभी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो आप देख रहे थे स्टैंड्स के अंदर सिर्फ इंडिया की शर्ट्स नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की दो कम थे। कमीजें नजर आई। या तो हम कमा ठीक नहीं रहे, हमारे पास पैसे नहीं टिकट खरीदने के, मसला क्या है हमारे साथ शुएब भाई? शुएब आप जाते थे खेलने, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, लाला खेल रहे थे पूरा स्टेडियम भरा है, वकार भाई खेल रहे पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, मसला क्या है? अब क्यों नहीं भरा हुआ हमारा स्टेडियम? I don't know, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मुझे शहजाद रोय गाना याद आ रहा है। वो कौन सा? कह रहा था कि अल्लाह न करे पाकिस्तान कैसे चलेगा, मुझे डर है ऐसे ना चलता रहे। तो ऐसे ना चलता रहे। I hope it gets better. Inshallah, I mean, we hope the same as well. For all of those Pakistanis who are out there in Dubai or Sharjah, I think it's your responsibility to go ahead and support your Pakistan's women team, participating in the ICC Women's T20 World Cup. अब जरा opener की जाने बढ़ते हैं. I think Verma actually played the opener's knock, made sure that she's going. The team for many years now. She has. And she has a bit of a knowledge about, thing or two about the cricket, and she applies that. And then she makes sure that yaar, finding the gaps, placing in the strokes in the right places, getting the runs, and plus she is a very powerful woman. True. And उनके अंदर जान है बल्ला घुमाने की, and having Shifari as an opener, she's blessing in disguise. अगर ये उनका शायद अफरीदी है. जी बिल्कुल ऐसे ही. So if you get about 50 runs, which he did, 43 out of 40. So it's a blessing in disguise. And in addition to this, it's not just that. I think India की जब हम women cricket team की बात कर रहे हैं, हमें ये बात जरूर करनी पड़ेगी. It's not just batting, it's not just bowling, it's fielding. So all of the three departments, they make sure that they're going to, get to the ace of it. And that's exactly what they did against Sri Lanka. मैं आपके सामने follow wickets रखना चाहता हूँ. Look at Going on between India and Sri Lanka. wow, and it is. I think what we need to do is that we really need to, from here onwards, obviously, congratulations, India. You guys did certainly perform well. Moving on to where it was Scotland today, wrapped up, sent back home, and lost with by 80 runs. That was unfortunate to see. So very quickly, looking at the match summary, how or what actually went wrong in between South Africa and Scotland. 166 of 5. अच्छे scores नजर आने शुरू हो गए हैं. Cap with 43, Brits with 43, Walwart 40. Walwart has been really consistent. Luss with 18. Luss came in today. And on the other hand, Fraser 1 of 15, Carter 1 of 17, Cape Rice 1 of 31, Bell 1 of 34. And on the other hand, Scotland certainly didn't go beyond 14. I think they really need to kind of sit down and think about it. Because इस group में, शायद Scotland has not won a single game. Haven't. Laba, once again, the spinner 3 of 12, Clerk 2 of 15, Tryon 2 of 22, and Duxon 1 of 5. Wow, in 1 over. That's a phenomenal job. South Africa winning by 80 runs. Let's have a look at the points table now following this match. G. So South Africa still at the top with 4 points, followed by England with 4, West Indies with 2, Bangladesh with 2, and Scotland are at the bottom of the table with 0 points. Still. So South Africa has played 3 matches, England 2, so the rest of the teams still have another match to go. Exactly. So South Africa, Scotland. Sheba, your take. I think South Africa played really well. I mean, like net run rate, we watched उनका 1.53 है. I think it's a good table to top, and I think the rest of the team that they just literally have to win the games to qualify that. Exactly, that's wonderful. With that, ladies and gentlemen, we'll head out towards a short break. Once we will come back after a short break, we'll certainly talk about England versus Pakistan. Whether Abrar is a mystery or whether Abrar is a mystery for us now. With 170 in 30 plus overs, unfortunately not being able to get wickets. Joe Root, with a century, all of those English batters who've been out there have made sure that they're going to thrash Pakistan like anything. And that too, way faster than how actually Pakistan did it. Is it just क्या हमें अपनी home conditions का पता है कि क्या होती हैं? क्या हमें ग्रास छोड़नी है? अगर हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट 9 mm 6 mm ग्रास छोड़ी थी, उसका हमें कोई एडवांटेज नहीं हुआ, तो अब जो होम कंडीशंस का बेनिफिट लेना था वो कैसे लेना था? बहुत सारे सवाल आते हैं आज.
तीसरे दिन के इख्तिताम की जानिब राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। अब चलते हैं जरा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच तीसरे रोज का इख्तिताम। 556 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, 60 रन की ट्रेल रह गई है और इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को अब यहां से भागने का मौका नहीं देगा। जी माही। Shahzad, day 3 of the first test from Multan, a typical batting wicket. We were, preempting this that England is going to take on the Pakistani bowlers. The only saving grace for us could have been good line and length by our bowlers. Were we able to do that today? Were our bowlers good enough? Is their fitness up to the mark? We've got our expert in the studio with us today. So let's have a look at the match summary and then we'll throw our questions at our expert. जी, तो अभी से इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स के हवाले से ही बात करते हैं। तकरीबन उन्होंने हमसे काफी कम ओवर्स में 492 रन बना दिए 3 विकेटों के नुकसान पर। रूट ऑब्वियसली स्टिल ऑन द क्रीज, 176 नॉट आउट ऑफ 277। हैरी ब्रुक स्टिल ऑन द क्रीज, 141 नॉट आउट। डकेट 84, 75 and Kohli 78. Shahzad, where we're speaking about Root's 176, Root has now surpassed Sir Alistair Cook's record of the highest test runs in test matches. So congratulations to Joe Root. Yeah, and not just that, he's on number 6 in most centuries in test as well now. Yeah, so imagine. Wow. So the most run getter for England, and then on number 6 we got the likes of Sachin Tendulkar, Sangakkara, and all of those people. So Joe Root, first of all, let's get started with him. He's a modern day great batsman, I think. Typical Englishman, a great character, and a great guy at the same time. He laughs, he has fun, and he plays. के बल्लेबाजी का कि आज पूरा दिन ये खड़े रहे, कहीं कोई डिहाइड्रेशन लगी, हल्का सा लगा के निकला है, या हैमस्ट्रिंग का मसला था, but he pulled through. Cramping. Cramping. End में थोड़ा सा था, and even though they had an option कि वो retired hurt हो सकते थे, but he didn't give up. That is where their courage and their willingness to play comes in. मैंने आपसे कहा था पहले दिन भी कहा था 250 करेंगे, बिल्कुल, ये 250 करेंगे, तो वो इस तरफ जा रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल मौजूद है ना आपके पास जी। तो ये 250 करेंगे। Again, I mean, we're talking about the modern great, which is Joe Root. I think it's been amazing. He's been amazing for the last 10 years. Simple as. And for him to just go out there and score some runs, nothing amazes me. एग्जैक्टली यहीं से जरा कंटिन्यू करता हूँ। ऑब्वियसली इज नॉट ऑन द क्रीज नाउ। मैं बेन डकेट के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। 75 गेंदों पे उन्होंने 84 रन बनाए और एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बैस बॉल की जो डेफिनेशन है वो बेन डकेट की शक्ल में नजर आई। अपनी फॉर्म में रहे, मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू यूटिलाइज ऑल द बना सके। उसमें सऊद को भी लाए, साइम को भी लाए, फिर उसके बाद सलमान अली आगा को भी लेकर आए। वो राइटफुल कॉम्बिनेशन नहीं नजर आया बॉलिंग का। यार देखो, फास्ट बॉलर कैन ओनली बॉल अराउंड बट 20 ओवर्स, मैक्स 15। अगर अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तगड़े फास्ट बॉलर जो अपना शाहिन शाह ने किया आज, तो अनफॉर्चुनेटली अबव 20 एंड बियॉन्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आई मीन ही ओनली हैव ऑप्शंस ऑफ बिटवीन देम टू, सो ही इज़ लर्निंग एट द सेम टाइम। यार उसके पास एमिनेशन पूरा नहीं, लेट्स पुट इट दिस वे, एमिनेशन पूरा नहीं है। हैड दैट शाहीन अगर firing, so it would have been much easier for Pakistan to get contain England in terms of यार इनको शायद हम 350 कराते, 300 कराते, 330 कराते, but unfortunately Shaheen wasn't up to the mark. Naseem was, but the rest of the bowlers, आप इब्रार की बात करें, जमाल की बात करें, तो आप उनसे तो कंटेन करने से रहे ना। This is what you have, but Shaheen obviously यार टेस्ट क्रिकेट बहुत लेट खेलता है, बहुत महीनों बाद खेलता है, तो इट्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम एट द सेम टाइम बॉलिंग अबाउट क्या 19 ओवर 19 ना, तो कल भी कराने हैं ना, 10 तो कल भी कराने हैं, 29 हो जाएंगे। सही है, मिनिमम 10 तो और कराने हैं। नसीम को भी 10 कराने हैं, तो उसके कितने हो जाएंगे? 21 हुए तो 31 हो जाएंगे। बिल्कुल। सो देखें सर, अगर आप 31 ओवर इन इनिंग्स करा रहे हैं, तो लिटरली ये कोई 10 को T20 बन जाते हैं। ट्रू। लिटरली इन बिटवीन 2 ऑफ देम ये तकरीबन को 15 T20 बन जाते हैं। इतने का तो सीजन खेलते हैं। ट्रू। फॉर देम टू आस्क टू बॉल लाइक दिस, इट्स नॉट ईजियर एज अ फास्ट बॉलर, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। अगर वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते रहते, अगर वो साल के 18 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, 20 खेलते हैं, तो देन आई वुड एक्सपेक्ट देम टू रन इन एंड टू बॉल लाइक दिस, बट अगेन ही इज trying his best, and he's a good kid, and he's trying his best, but unfortunately his pace is not there, his firing ability is not there, so yeah. शहजाद, जहां हम बात करते हैं हमारी गेम की, you spoke about Shan Masood and his plan with the bowlers.
There was a lack of plan which was evident. कल जब सलमान अली आगा से पूछा गया, उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी यही कहा कि जब मैं खेलने गया तो मुझे कोचिंग स्टाफ की तरफ से या कैप्टन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी. आई जस्ट प्लेड विद माय ओन गट फीलिंग. तो इज देयर अ लैक ऑफ प्लान? इज देयर नो यू नो कम्युनिकेशन? सोलो चाहिए यहाँ पे. कोई कम्युनिकेशन नहीं नजर आ रही हमें. ड्रेसिंग रूम में कम्युनिकेशन नहीं है, कोचेस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है. ये क्यों हमें इतने अरसे से ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और एक हम गेमर है ना सारे. ये क्यों? व्हाई इज दिस हैपनिंग? जी शेर भाई. यार आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है. तो अब मैं क्या कहूँ इस पे. मैक्सिमम मैं क्या कह सकता हूँ. यही है आपके सामने, जो है आपके सामने, बस ऐसे ही है. हमें क्रिटिसाइज करके फायदा भी कोई नहीं जी. और इनको कह के भी कोई फायदा नहीं. बट द थिंग इज देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज नथिंग. आई मीन लाइक व्हाट आर यू गोना से. आई मीन लाइक 100 कितने उन्होंने 492 कितना किया है? 142 ओवर में 492 142 ओवर्स में किया ना जी. 101 ओवर में. 101 सॉरी. तो 492 101 ओवर में किया था. 10 टन बता दी. 500 हमने स्कोर किया 100 ओवरों में. जी. 250 उन्होंने 50 और हमने 149 में किया. 50 ओवरों का फर्क है. वही नहीं यार, तुम्हारा वही सवाल था, तुम्हारा वही जवाब था, विच इज यार आप किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो, दुनिया किस तरह खेल रही है. इतनी आसान विकेट पे आप 100 बॉल एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो. I mean, obviously, he's a young captain, he's a young team, he's a young coach. Again, you know, I don't understand what to criticize. हाँ, मतलब किसको क्या कहें? किसको क्या कहें? क्या बस सब तो ठीक पता ही है, आपको. जो चल रहा है उसे चलने दे. बस इस तरह ही कह सकता हूँ. और कुछ नहीं देखने है. वालों को, जैसा कि माहीन है, हमारे जितने भी और चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको पता नहीं, कोई दिल में ना ऐसे जैसे कहते हैं अब सबको दर्द होता है यार. मुझे भी तकलीफ होती है. बट थिंग इज, ये बच्चे हैं हमारे यार. लेकिन अब इन बच्चों को मैं क्या कहूँ. हमें लाइक जिस तरह वो ट्रेंड बेचारे हुए थे 5-10 साल में, वैसे वो डिस्प्ले कर रहे हैं. अब इनको मैं क्वेश्चन देना चाहूँ तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ यार. आप टेस्ट मैच कितने देते हो इनको बेचारों को? कम खेलते हैं. क्या खेलते हैं? 8 टेस्ट मैच, 6-7 टेस्ट मैच 12 महीनों में. और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बिहेव कर जैसे उन्होंने साल के 25 टेस्ट मैच खेलते हैं या 22 टेस्ट मैच खेलते हैं. और अगर बाबर ने 100 टेस्ट मैच अभी तक नहीं खेले तो किसका कसूर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना यार. अजहर अली की नहीं 100 हुए. हाँ एग्जैक्टली. तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं हो तो फिर कैसे बिहेव करेंगे? सो आई डोंट ब्लेम देम, यू नो, आई डोंट क्रिटिसाइज देम, यू नो. बट ठीक है, जो है, दिस इज द बेस्ट यू हैव. ओके. And unfortunately, where we put all the blame on the pitch and the wicket, हमारे एक फॉरेन क्यूरेटर है, उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी देखें, विकेट उस तरह की है, we've put our maximum effort into it, it's literally like a bed of feathers under that top. Green top होगी, लेकिन उसको, he said there's nothing in the soil, this is the maximum that we can do. नहीं, लेकिन जो कॉमेंट्स बॉक्स से जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि क्यूरेटर सेड कि एवरी सिंगल डे द पिच इज गोइंग टू चेंज इट्स बिहेवियर, बट दैट्स नॉट हैपनिंग. क्या हमें आज तक अपने होम ग्राउंड का बेनिफिट नहीं लेने आया, एडवांटेज नहीं लेना आया? हमने बांग्लादेश के खिलाफ 6 mm 9 mm घास छोड़ी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ. इधर घास छोड़ी, अब इंग्लैंड हमें पीछे छोड़ने को लगा हुआ है. देखिए, घास छोड़ने से तो कुछ नहीं होता ना. नीचे क्या है सरफेस में, उसकी बात करें ना. वो तो रॉक सॉलिड. तो ऑब्वियसली अब उसकी प्रिपरेशन में अब कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ मुझे नहीं पता इसका. वो हफ्ता पहले तैयार हुई है, 3 दिन पहले तैयार हुई है, 10 दिन पहले तैयार हुई है, वो साल से पहले प्लानिंग होती है. ऑफ कोर्स यू नो द आंसर. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने तेज़ विकेटें बनानी थी, हमने बना के दिखाई. एटिक्सन हमारे वो थे क्यूरेटर, तो उन्होंने विकेटें तेज़ बना के दिखाई, कोई मसला नहीं. बॉल कैरी भी कर रहा था, बेहतरीन जा रहा था, और मुंह पे लग भी रहा था बॉल, तो कोई मसला नहीं. देखिए, इंटेंट, तवज्जो है, ख्याल करना, तो थोड़ा सा ख्याल करना और इंटेंट शो करना, बस दैट्स इट. जिंदगी टोटल खेल इतना है. ट्रू. थोड़ा ख्याल करना और थोड़ा इंटेंट शो करना. बिल्कुल. टोटल मंत्रा ये जिंदगी का यही है. मैं तो यही समझूँ आज तक. तो इंटेंट इज देयर, और बैट्समैन ने क्या ख्याल करना, तो दिल लगा के काम करना और थोड़ा ख्याल करना. I don't think they given enough time to curator to, you know, to prepare the wicket that what they're looking for. I don't blame the curator. No. But यहाँ मेरा छोटा सा एक और सवाल भी है. See, we've seen the wickets in Dubai and Sharjah. दुबई और शारजा के मुकाबले में मुल्तान तो इतना ड्राई नहीं होगा. If they have the resources to bring in the required soil to make those pitches, क्या PCB के पास इतने resources नहीं है कि वो आके उस तरह की soil लेके आए, import करें और फिर अपने pitches पे काम करें? Madam, you're activating my cricketing brain now. These cities are on the coastline, Dubai and Abu Dhabi.
कोस्ट लाइन से होता ही है कि शाम को ब्रीज चलती है, जैसे जिसे कहते हैं कि ब्रिंग्स अ ड्यू फैक्टर, एंड रेगिस्तान की अपनी ड्यू होती है शाम के वक्त। ठीक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, सितंबर अक्टूबर है, आप किस महीने में हैं, और आप अगर दिसंबर में हैं तो ड्यू फैक्टर वहाँ गिर जाता है। ड्यू फैक्टर का मसला ये है कि बेसिकली ग्राउंड जो है दुबई का वो सैंड के ऊपर है, जो विकटें हैं वो रॉक सॉलिड है, राइट। और जब उसके ऊपर थोड़ी ड्यू गिरती है और जब वो मिट्टी, काली मिट्टी जुड़ना शुरू होती है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। राइट। जब वो इकट्ठा शुरू होते हैं उसके ऊपर हैवी रोल करें फर्स्ट इनिंग्स में, जैसे कप्तान मोस्टली मांगते हैं, तो वो अच्छा एक इवन बाउंस के साथ और ड्यू के साथ वो निप थ्रू करता है, वो स्किड थ्रू जिसे कहते हैं। ठीक है। Right. वो होता है। मुल्तान इज नॉट ऑन द कोस्ट लाइन, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, इट्स सच अ ड्राई लैंड जहाँ पे आपको तकरीबन आपको 25 से 30 दिन पहले विकेट तैयार करनी पड़ेगी। ओके। और उसको नर्चर करना पड़ेगा उस विकेट को, पानी दे रहे हैं, सब कर रहे ताकि वो पानी नहीं, रोल है, पानी है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी का एक और लेयर्स हैं, फिर उसके बाद घास छोड़ना है, फिर कटाई है, कितनी कटाई है, कितनी छोड़नी है, इट्स अ होल लॉट ऑफ साइंस। तो ये आप 30 दिन पहले विकेट बनाते हैं, 26 घंटे पहले नहीं। राइट। और अगर आप मट्टी शायद बाहर से ले भी आएंगे मुल्तान में, अगर आप वो प्लेस करेंगे तो थोड़े से बाद जितना सेका पड़ेगा शायद उसका इम्पैक्ट वो ना रहे। अब एक और चीज़ कि भाई अब मुल्तान में कवर्स का भी बड़ा ताल्लुक है हाँ जी। इससे, कवर्स का भी बहुत ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही। और अनकवर्ड विकेटों का भी बहुत ताल्लुक है। यार देखो ना, मुल्तान में कौन स्क्वायर कवर करेगा? 11 महीने के कवर स्क्वायर कवर है, खुला पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो अनट्रीटेड सॉइल है, तो जिसकी वजह से, बट द थिंग इज दे ट्राइंग देयर बेस्ट यार। लेकिन लोग पाकिस्तान मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ट्राइंग देयर बेस्ट। उन्हें घास छोड़ के तो शायद बॉल निप थ्रू करे और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो। अब रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट ऐसी ही हो सकती है कि पाकिस्तान हैज टू बैट सो वेल, जो मैंने आपको कल भी कहा, बिल्कुल। कि दे हैव टू सेव दिस गेम थ्रू द बैटिंग, Exactly. दे हैव टू गो टुवर्ड्स ड्रॉ नाउ। Okay, I think that's a big news. But very quickly, just to wrap this subject up as well. अगर हमें पता था कि हम मुल्तान में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, हमने जब टीम सिलेक्शन की, अब मैं अक्रॉस फॉर्मेट लेके जा रहा हूँ बात को, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मेरिट पे नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली को हमने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान में बहुत सारी विकेट्स लेते हुए देखा, अमंग्स हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे जब तक पीएसएल मुल्तान में हो रहा था। हमने मोहम्मद अली को अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में। अगर मुल्तान में ही मैच हो रहा था, उन कंडीशंस के प्लेयर्स जो वहां खेलते हैं, उन ग्राउंड्स में खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन रन ऑफ द मिल थिंग्स नहीं की जा सकती ना। रन ऑफ द मिल थिंग कैसे? अब आप उनके प्लान्स हैं, कप्तान के प्लान्स हैं, कोच के हैं, बोर्ड के हैं। आई थिंक इस तरह नहीं होता कि उन्होंने आउट किए तो खिला दे, पीएसएल में आउट किए तो खिला दे। इब्रार भी पीएसएल से निकला ना, तो खिला दिया आपने, उसको तो टेस्ट क्या हो गया? हाँ। पीएसएल इज 170 नॉट, रन पड़ गए। पीएसएल इज और हमारे लिए नॉट, मिस्ट्री बन गई। हाँ, पीएसएल इज नॉट द मैरिट। मैरिट ये होता है कि आप तकरीबन कोई 24 गेमें खेले हो, 30 गेमें खेले हो फर्स्ट क्लास के, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या हिसाब किताब। 30 गेमें तो खेलो ना, 25 गेमें तो मैंडेटरी है ना। एग्जैक्टली। तो 25 के बाद मैं डिसाइड करूंगा यार कि आप में क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको सिलेक्ट करूँ पाकिस्तान टीम में। ठीक है। और अभी जो चीज़ मेरा ख्याल है हमारे पास क्रीज पर मौजूद है वो हैरी ब्रुक है, और जो रूट है जरा हैरी ब्रुक की जाने पढ़ना चाहता हूँ, जो कि हमने मैच शुरू होने से पहले इनके हवाले से आपने, अगर नहीं है विकेट में कुछ भी तो बॉलर बेचारा क्या कर सकता है? आई मीन देयर इज लिटिल दैट ही कैन डू। अब इंटिमिडेट करने वाले नहीं है हमारे पास वही प्लेयर्स है, वही आर्मरी, हमने उसी को यूटिलाइज करना है। लेंथ यूज की ना नसीम शाह ने, नसीम ने बिल्कुल नसीम ने आज यूज की। की। लेंथ यूज की ना, उसने अंदर बाहर करता रहा ना। हाँ। बिल्कुल करता है। देखिए मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि अगर आप विकेट नहीं ले सकते, रन तो रोक सकते हैं, एक साइड पे बॉलिंग तो कर सकते हैं, एक साइड की लेंथ तो पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। दैट्स ऑल। और वही टेस्ट है बेसिकली, टेस्ट क्रिकेट, दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज। ऑफ पे फील्ड लिया, ऑफ पे बॉल कराते जाए ट्रिक करते रहे। बट एक जगह ऐसा लगा कि शायद गेम चेंज हो सकती थी। ऑब्वियसली आई डू नो फॉर अ फैक्ट कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को ही जाता है, लेकिन जिस कंडीशन में हमारे बॉलर्स थे, दिल से आवाज निकली कि यार ये हमें बेनिफिट होना चाहिए था। जरा मैं दिखाना शहजाद चाहता जो हूं। ये विकेट है इस पे तो वेरी क्विकली शोएब भाई, टू रैप इट अप, व्हाट डू यू थिंक, वुड वी बी एबल टू डू इट? अगर ये देखें वो कल आएंगे, कल लंच तक खेलेंगे और तेज खेलेंगे, वो कोशिश करेंगे 250 रन बनाएं। और फिर उसके बाद हम वो जैसे मेरा हमारा ऑलराउंडर कहता था लटायर, अपना छोड़ देंगे इनिंग्स और वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को 300 कराएं जो कोलैप्स होगा, और 300 में अगर 150 की रन की लीड हुई तो पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल। वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर ऑनवर्ड्स लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टुमारो।
which two teams are going to come together. From here onwards, it's going to be one game only every single day towards the final of the ICC Women's T20 World Cup 2024. It will be Bangladesh versus West Indies. West Indies won their last game, Bangladesh lost their last game, Bangladesh won their first game, and West Indies lost their first game, so it's going to be a tricky game for both of them. We'll talk about it tomorrow, inshallah. For everybody who's out there, Khawateen aur Zad, aapse inshallah subah mulaqat hogi with Maheen and Shoaib. Shoaib, thank you so much for always being so kind and brainy with cricket and whatever questions we throw your way. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. Fi aman Allah. Allah Hafiz. 1, 2, 3. Game on. Game on hai.